Hello dear students, today we are going to start with the next chapter of prose, and the name of the chapter is The Sound of Music. As you can see the title given on the screen, Sound of Music. The title itself tells that it is something related to music. Right now, before we start with this chapter, let me tell you that this chapter has been divided into two parts. Right, two parts. It's basically because it is basically the chapter divided on the basis of stories of two important people, right? And they have demonstrated the example of never giving up in life, right? Very beautifully they have gave us a lesson. They have taught us that how, despite of so many difficulties, despite of so many weak points, we can achieve something that we really are determined to, right? So today we are going to start up with the first part of this chapter, Sound of Music, right? And the first part is about Evelyn Glennie, right? And she's a woman who actually was able to listen to the sound without even hearing it. Now this sounds to be very strange ki how can somebody hear, probably how could somebody understand the sound, or how could somebody listen to the sound without hearing it. But before we move on with this chapter, if you can see the two important words written in bold line, listen and hear, right? So there is a very thin line difference, but a very important difference between listening and hearing. When I say listening and when I say hearing, they are far different. हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ किसी साउंड का आपके कानों पर पड़ना, यानी कि सिर्फ एक आवाज़। और लिसनिंग का मतलब होता है उस आवाज़ को जो आपके कानों पे पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करके उसको समझना, राइट? उससे एब्जॉर्ब करके अपने दिमाग में उसे समझकर आगे बढ़ना। सो दैट इज़ लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट हैपन्स कि जब कोई स्पीचेस चल रहे होते हैं एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो हियरिंग होता है हमारा, वो आवाज़ हम पर पड़ रही है, बट बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट, so we cannot listen to them. But when there is something important or some person is giving a speech on something which we are very much interested in, right, तो उस टाइम पे हम not just hearing but we also do listening. Okay, so Evelyn Glennie, she was a Scottish girl, and since childhood she was very fond of music, right? And she wanted to make music as her life, but because later in her childhood she became deaf, right? And at what age? Probably she was 11. Now being facing such physical problem, she didn't lose her heart. She learned to feel the music, right? And she understood that it's not just the ears which may help you to understand music, even other various parts of your body help you to absorb the music. Though she was deaf, yet she could listen to the sweet sound of music through her mind and body, right? So this required a very regressive training, right? After a particular time of training and some guidelines, she was able to feel the music by her mind and body. It was something very remarkable, because we haven't heard anybody feeling the music through mind or body parts. But she became the member of youth orchestra also, and she toured United Kingdom, and she impressed everyone with her unique skill. So slowly and gradually she started giving solo performances, right? And then slowly she had the mastery. She was able to take the mastery of about 1000 percussion instruments means musical instruments, यानी कि percussion का मतलब होता है ताल, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की ताल को पहचानना. She had won many awards, but still being so famous and acclaimed, she remained very humble as ever and very down to earth. कभी उसमें arrogance या घमंड नहीं आया. Apart from her regular concerts, she also gave concerts to help the deaf children. Charity करती थी, वहाँ जाके शो करती थी जहाँ पर डेफ बच्चे हैं, तो वो सारा पैसा उनकी पढ़ाई लिखाई या उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो, तो इसलिए वो काफ़ी सारे दूसरे चैरिटी कंसर्ट्स भी करती थी. She also became a source of inspiration for handicapped people,
right? She demonstrated, she showed them that nothing is impossible for one such person who has the will and the determination to do thing and work hard for it, right? Now the story goes like, if I start with a detailed story about Evelyn Glennie, she became deaf when she was 11, as I said in the introduction. Still, she became one of the greatest percussionists of the world. राइट, percussionist मीन्स somebody, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हर संगीत या वाद्य यंत्र की ताल के नॉलेज हो, कि तबले की ताल ऐसी होती है, गिटार की ताल ऐसी होती है. सो देज पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ सच tals, they are called percussionists, right? And she was one of the greatest percussionists of the world. She could not hear music, but she could feel it through the different parts of her body, right? And Evelyn Glennie was very fond of music even in her childhood, right? She was then 8 years old, and one day her mother, she was actually when 8 years old, one day her mother noticed that there was something wrong with Evelyn. अब वहाँ से उनको डाउट होना शुरू हुआ, जहाँ से ये डेफनेस उनकी शुरू हुई. तब वो जो छोटी सी बच्ची थी एवलिन, शी वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न, कि जब कब उसकी बारी आए और कब वो पियानो प्ले करे, राइट? तो दे कॉल्ड हर नेम, एवलिन चलो आओ, एवलिन चलो आओ, ऐसे करके बुलाया, बट एवलिन अपनी जगह से हिली ही नहीं. दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन वेयर शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली. उसको अपना नाम सुनाई ही नहीं दिया था, राइट? दे डिडंट से इट सो स्लोली, नॉर्मली जैसे हम आवाज़ में बुलाते हैं वैसे एवलिन का नाम लिया गया, बट उसे सुनाई नहीं दिया अच्छे से, राइट? और इसी वजह से एवलिन को भी मालूम पड़ गया था कि देर इज़ सम प्रॉब्लम, राइट, फॉर इन हियरिंग फॉर हर. सो वो अपनी प्रॉब्लम को छुपाने लग गई. उसकी डेफनेस बढ़ती जा रही थी और वो शर्म के मारे अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से ये प्रॉब्लम छुपाती जा रही थी. पर जैसे जैसे वो 11 ईयर्स की हो गई, her performance at school also had gone very low, academic performance, right? क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था तो वो पढ़ नहीं पाती थी, टीचर क्या बोलती वो समझ नहीं पाती थी, और प्लस वो अपनी इस बीमारी को छुपा रही थी, तो इसका कोई इलाज भी नहीं था. फिर उसकी प्रिंसिपल मैम ने उसके पेरेंट्स को बुलाया एक दिन और उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाओ, राइट? एंड इट वॉज देन फाउंड, डॉक्टर के पास जाने के बाद, कि एवलिन की हियरिंग जो है, हियरिंग कैपेसिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, राइट? इसलिए उसके पेरेंट्स को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप इसको ऐसे स्कूल में भेजो जो कि डेफ, जहाँ पर डेफ बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है? और एवलिन के लिए ये सब कुछ अचानक से इस तरह बदल जाना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था. ऑफ कोर्स अब हम उसको अब हम खुद को उसकी जगह पर रख के देखें, राइट? इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट. अभी तक आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, यू हैड फ्रेंड्स, यू कुड हियर प्रॉपरली, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज डेफ, आपको पता चलता है आप अच्छे से सुन नहीं पाते, योर एंटायर वर्ल्ड चेंजेस, राइट? यू आर सपोज टू सिट विद दोज पीपल, राइट, whom you never imagined in your life, right? You have to sit with differently abled people. अपने जैसी बीमारी के लोगों के साथ आपको बैठना पड़ रहा है, आपके वो फ्रेंड्स नहीं हैं. तो ये एक उस एज में, यू नो, जिस एज में एवलिन ने ये सब फेस किया एज अ चाइल्ड, इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, राइट? सो ऑल ऑफ अ सडन उसकी पूरी दुनिया जो है वो एकदम ब्लैक हो गई थी, जैसा यहाँ लिखा है, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, राइट? सो बट एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी, राइट? सो एज आई सेड दैट कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी. क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसे जीनी है तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना है, ऐसी कोई लाइफ नहीं जीनी जिसमें लोग उसे दया वाली नज़रों से देखें. सो शी हैड मेड अप हर माइंड, राइट? एंड शी स्टार्टेड परस्यूइंग बैक टू हर इंटरेस्ट. उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, उसने वापस उसमें ध्यान लगाना शुरू किया. ज़्यादातर उसके टीचर्स जो होते थे, राइट, वो उसे यू नो मोटिवेट नहीं करते थे, इनफैक्ट उसको डिस्करेज करते थे कि तुम बहरी हो, राइट, हाउ कुड यू बी एबल टू गो अहेड विद म्यूज़िक एज योर पैशन. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स. रॉन फॉब्स ने एक दिन उसका पोटेंशियल देखा, राइट? उन्होंने देखा कि एक दिन एक छोटी दूसरी बच्ची थी, वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी, तो उसको देखकर एवलिन का भी मन हुआ कि यार इवन आई वुड लाइक टू प्ले दिस जाइलोफोन. जाइलोफोन मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. इवन आप गूगल करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो जाइलोफोन बहुत बेसिक सा है, हम सभी को बचपन में कभी ना कभी मिला होगा वो, राइट, या हमने देखा होगा, राइट? तो यहाँ पर रॉन फॉब्स ने उसका पोटेंशियल देखा, किसका? एवलिन का.
क्यों, क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वो इतनी इंटरेस्टेड है म्यूज़िक में कि अपनी डिसेबिलिटी होने के बावजूद उस छोटी लड़की से मांग रही है जाइलोफोन बजाने के लिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ही सेड टू हर, उसके पास गए, उन्होंने कहा कि प्लीज़ डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, राइट। एवलिन से कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट थ्रू सम अदर वे। और हुआ ऐसा कि फॉर्ब्स ने उन्हें 2 ड्रम्स ला के दिए, दोनों ड्रम के डिफरेंट नोट्स रख दिए, राइट। अभी हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ना स्केल होते हैं, पिचेस होते हैं, एक बहुत हाई स्केल पे होता है, एक लो स्केल पे होता है, राइट। तो ऐसे ही वो 2 ड्रम्स लेकर आए और दोनों को अलग अलग नोट्स पे सेट कर दिया, ठीक है। और अलग अलग नोट्स पे जब सेट कर दिया तो एवलिन ने अचानक रियलाइज़ किया कि जो हाई पिच का जो ड्रम बजाने की आवाज़ है, ऊंची आवाज़ जो है, वो फील कर सकती है अपने वेस्ट से ऊपर के हिस्से में। वी कैन एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, व्हेन बहुत ज़्यादा ज़ोर से डीजे बज रहा होता है कहीं पर, तो यू कैन फील द ड्रमिंग वाइब्रेशंस इन समवेयर अबव योर वेस्ट, समवेयर इन योर चेस्ट, राइट। तो ऐसे ही उसने भी यही फील किया कि जो हाइयर इंटेंसिटी है ड्रम की, शी कुड फील इट इन द अपर वेस्ट, एंड जो लोअर स्केल पे जो ड्रम बज रहा है उसकी जो सेंस साउंड है वो अपने वेस्ट से नीचे के हिस्से में महसूस कर सकती है। तो ऐसा ही फॉर्ब्स ने जो है उसने रिपीट किया, ये जो एक्सरसाइज है हाई ड्रम पे बजानी, लो ड्रम पे, ये समझाने के लिए कि कैसे तुम हायर स्केल की आवाज़ समझोगी और कैसे लोअर स्केल की। तो ये एक्सरसाइज उन्होंने रिपीट की और बहुत जल्द उन्होंने देखा कि एवलिन अच्छी तरह से कुछ नोट्स को पहचानने लगी थी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, राइट। उसने ये भी सीखा कि अपने दिमाग को अगर हम खोलें और अपने शरीर को हम पूरा ओपन रखें साउंड्स एंड वाइब्रेशंस के लिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है साउंड्स को समझना। उस दिन से एवलिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, राइट। एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्म डिटर्मिनेशन and hard work that Evelyn had done, and she was also ready to do further also, right. So by the time when she was 16 years old, see, this is the picture of xylophone, if you can see on the screen, right. This is a musical instrument और बचपन में कभी ना कभी हमने देखा या यूज़ किया ही होगा इसको, okay. And she never looked back, okay, when she was 16 years old, right. She had decided to make music her life. उसने सोचा कि नाउ इट इज़ ओनली द म्यूज़िक जिसको मैं अपना करियर बना सकती हूँ और मुझे बनाना है। सो शी वेंट टू लंडन एंड शी जॉइंड द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, राइट। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उन्होंने ऑडिशन दिया और एडमिशन वहाँ फर्दर हायर स्टडीज़ ली म्यूज़िक को लेकर। और वहाँ पर जो अभी तक का इतिहास था उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स उस पूरी एकेडमी में आए किसके, एवलिन के। ना इससे पहले कभी आए, ना इन फ्यूचर अभी तक किसी के इतने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, राइट। एंड देन शी ग्रेजुअली मूव्ड ऑन टू सम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज ऑल्सो, राइट। सो उनका जो एडमिशन टेस्ट था वहाँ पर उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे, जो अभी तक की हिस्ट्री में उसके हाईएस्ट है, राइट। तो जैसे ही उनका 3 ईयर्स का कोर्स पूरा हुआ, उन्होंने ऑलमोस्ट एकेडमी के सारे टॉप अवार्ड्स अपने नाम पे लिखवा लिए थे। उसके बाद जैसा मैंने कहा, एवलिन ने यूके का भी टूर किया था एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। अब ये टूर, यूके टूर मतलब लिटरली घूमने नहीं गए थे, जैसे एक प्रॉपर बैंड होता है, म्यूज़िक बैंड होता है, तो इनको कई सारे देश इनवाइट करते हैं, राइट, टू कम इन आवर कंट्री एंड डू डिफरेंट कॉन्सर्ट्स और शोज़। तो ये पूरे टूर चलता है इनका, जैसे हम कहते हैं यूरोप टूर, एशियन टूर, राइट। तो एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ इनवाइट करती हैं फेमस बैंड वालों को, राइट, रॉक बैंड्स जो होते हैं। उसी तरह एवलिन ने भी एक बैंड ज्वाइन किया था, ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, एंड शी वेंट फॉर अ टूर इन यूके, राइट। लेकिन बहुत ही जल्द शी ऑल्सो लेफ्ट द ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड शी मूव टू सोलो परफॉर्मेंसेस, राइट। शी कुड प्ले ऑन अबाउट 1000 परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स विद ग्रेट मास्टरी। मतलब वो हमें कम से कम वो 1000 म्यूज़िक यंत्र जो हैं वो चला अपने आप बजा सकती थी और बहुत ही सुंदर तरीके से बजा सकती थी, राइट। यहाँ पर नॉर्मली एक इंसान को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने मिनिमम इसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की ताल सीख ली थी,
right? So this is something very remarkable, right? It was so wonderful to see how a deaf girl could, play the instruments, right? And with so smoothly, without any effort. But in spite of her great achievements, इतने achievements होने के बाद भी उनकी लाइफ में या उनके बिहेवियर में देर वॉज नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस, नो ट्रेस ऑफ प्राइड इन हर. शी वॉज सो डाउन टू अर्थ, सो ग्राउंडेड. शी वॉज वेरी सिंपल, इतना फेमस होने के बाद भी. एंड शी वुड यूजुअली से, वो अक्सर कहते थे कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप मेहनत करोगे और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे. एंड श्योरली शी गॉट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक ऑल्सो. और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से वो एक अपने एम तक पहुँची, अपने टॉप के अचीवमेंट तक पहुँची. शी ऑल्सो सेज दैट कि म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वो ये कहती हैं कि मेरे अंदर जो म्यूज़िक है वो कानों से नहीं आता, मेरे अंदर मेरे हर पार्ट से, मेरी बॉडी के पार्ट से म्यूज़िक मेरे अंदर आता है. एंड शी सेज म्यूज़िक tingles in my skin, my cheekbones, and even in my hair, right? And she says when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. मतलब वो कहती हैं कि ये जब वो xylophone ऊपर देखो, जब आप वो xylophone बजाती है तो वो कहती है कि ये जो sticks हैं ऊपर दो रखी हुई, तो वो स्टिक्स जब वो हाथों में पकड़ती है तो उस स्टिक्स के थ्रू जो साउंड है, जो म्यूज़िक है, वो उसकी बॉडी में जाता है. एंड शी अंडरस्टैंड्स इट, राइट? सो बाई, एंड शी ऑल्सो सेज कि जब मैं ड्रम्स की तरफ बजाने के लिए बैठती हूँ, थोड़ा सा झुकती हूँ ड्रम्स के ऊपर, शी कैन फील द रेजोनेंस, वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, शी कैन सी देम फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, राइट? जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठती है म्यूज़िक बजाने के लिए, तो अपने शूज़ उतार के बैठती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस कैन पास थ्रू हर फ्रॉम हर फुट, राइट? और लेग्स तक उस पर पहुँचे. एंड what we hear she feels, right? far more deeply than any of us. मतलब कि she says कि जो आप लोग सुनते हो, जो मैं बजा रही हूँ, उस चीज़ को मैं एक्चुअली में फील करती हूँ, क्योंकि मैं सुन नहीं सकती, आई ओनली फील. तो जो आप सुन रहे हो वो मैं फील कर रही हूँ, राइट? और ये चीज़ वही इंसान बोल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखता हो. ओके, सो Evelyn loves to work hard. She says that she's a workaholic. Now, workaholic means somebody who loves to keep himself or herself engaged in some or the other work, right? She loves to work continuously so many hours altogether. Apart from her regular concerts, रेगुलर जो पैसे कमाने के लिए जो कॉन्सर्ट्स करती है, उसके अलावा वो कुछ फ्री परफॉर्मेंसेस कहाँ देती है? प्रिजन्स में, जेल जहाँ पर कैदी होते हैं, वहाँ पर म्यूज़िक का कुछ शोज़ करती है. हॉस्पिटल्स में करती है, क्योंकि यहाँ भी लोगों को म्यूज़िक से बहुत लगाव है, क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ वेरी कॉमन टर्म फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. हमारे दिमाग को आराम चाहिए, तो हम सबको चाहिए, चाहे वो प्रिजन के लोग हों, चाहे वो पेशेंट्स हों. तो कुछ फ्री परफॉर्मेंसेस वो प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स में करती है. She has become a shining inspiration, for deaf children. अब डेफ लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गई है. लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि इफ़ वी आर नॉट बीइंग empowered with the normal human capacity, then we can convert that particular inability in an opportunity, right? And she has shown to them that there is nowhere she has shown that there is nowhere or no place in the world where one cannot reach. Okay, Evelyn Glennie has already achieved more than most people twice her age. मतलब उन्होंने अपनी कम उम्र में ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है जो कि उनसे डबल उम्र के लोग अचीव नहीं कर पाते. She has brought percussions to the forefront of the orchestra. मतलब हम अगर कोई गाना सुनते हैं तो वी फील लाइक कि क्या बोल हैं गाने के. नो, एक्चुअल में उस बोल को अगर किसी ने जान दी है, उन शब्दों को अगर जान दी है, उन गीत के शब्दों को जान देने का मेन काम किसका होता है? उन व्यक्तियों का जो पीछे बैठते हैं और उसमें संगीत मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से यू कैन एन्जॉय द एंटायर सॉन्ग. तो एवलिन ग्लेनी वॉज द फर्स्ट विमेन जिन्होंने पीछे बैक साउंड वालों का इम्पोर्टेंस दुनिया को बताया था. एंड शी हैड शोन दैट इट कैन बी वेरी मूविंग.
Okay, so this is an inspirational story. You can go through in your textbooks again, right? Whatever doubts you are having, you can get back in the group, or probably you can message us, right? And in the next class you will be receiving the question answers related to this chapter. If you have any doubt, you can get back to me. Thank you.